گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک دو سوال لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ان دنوں جلسوں کا ماحول اتنا انتہائی پراگندہ ہو گیا ہے، ہر جلسہ والا اپنے مخالف کے خلاف تقریریں کرواتا ہے۔ جیسا کہ ابھی قریب ہی میں لوہنا میں یہ واقعہ ہوا کہ وہاں بھی ایک شاہ جی صاحب کو بلایا گیا تھا اور وہ بھی آپ کے خلاف بولے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلانے والے کے لیے اور بولنے والے کے لیے اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ رہنمائی نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بلانے والوں کو بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، بولنے والوں کو بھی اللہ اس کے رسول کا ڈر رکھنا چاہیے۔ ابھی قوم کن حالات سے گزر رہی ہے اور ہمارے ملک کی حالات بھی اس قدر پراگندہ ہو چکے ہیں، اور مخالفت، نفرتیں، کدورتیں، بغاوتیں، قومی اختلاف اور مذہبی مسلکی اختلافات، یہ سارے اختلافات ہمارے ہاں ابھی پاؤں جما رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بولنے والوں کو بھی ہوش کا ناخن لینا چاہیے کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کس عنوان پہ ہمیں گفتگو کرنا چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بولنے والے عقل سے پیدل ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ چند پیسوں کے چکر میں اپنا فرض منصبی بھلا چکے ہوتے ہیں۔ جو ان کی منصبی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے یہ دور بھاگ چکے ہیں۔ جلسہ کا اشتہار لگاتے ہیں رسول اعظم کانفرنس، کہیں پر سیرت رسول اکرم کانفرنس، کہیں پر شفیع محشر کانفرنس، کہیں پر غوث الاعظم کانفرنس وغیرہ وغیرہ۔ تو بورڈ تو لگاتے ہیں اس طرح کا اور اس میں تقریریں کراتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف میں، جن سے نظریاتی اختلاف ہو، فکری اختلاف ہو، مسائل میں اختلاف ہو، فقہی اصول میں اختلاف ہو، فقہی مسائل میں اختلاف ہو۔ تو ایسے مخالفین کو لوگ اپنا نشانہ گفتگو بناتے ہیں، نشانہ خطاب بناتے ہیں، اور ان کی طلب کیا ہوتی ہے کہ اس طرح فلاں کا خلاف بولوں گا تو مجھے صاحب جلسہ زیادہ نظر و نیاز سے نوازیں گے۔ یعنی چند پیسوں کے چکر میں یہ اپنی غیرت ایمانی کا سودا کرتے پھر رہے ہیں۔ بولنے والوں کی سائز بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو دیکھیے تو سمجھ سے باہر ہونے لگتا ہے کہ نہ یہ بولنے والا اپنا منہ دیکھتا ہے، نہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے، نہ اپنی قد و قامت دیکھتا ہے، اور چوہا ہو کر کے پہاڑ سے یا شیر سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بولنے والے وہ تو ضمیر فروش ہوتے ہی ہیں۔ بلانے والے بھی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں کہ اشتہار آپ چھپاتے ہیں رسول اعظم کانفرنس، سیرت رسول اکرم کانفرنس، غوث الاعظم کانفرنس، رحمت للعالمین کانفرنس، نام رکھتے ہیں جلسوں کا اس طرح سے، مگر بلواتے ہیں اس میں خلاف۔ اپنے مخالفین کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ بنانا، یہ تو ایسے ہو گیا کہ دکان پہ بورڈ لگائیے سونا چاندی کا اور اس دکان میں بیچیے چوہا مارنے والی دوا۔ یہ حالت ان لوگوں کی بن چکی ہے۔ تو یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ملکی حالات سے یہ نابلد و ناآشنا ہیں۔ ہم کہاں پہ ہیں، کیسے حالات کا ہمیں سامنا ہے، انہیں ذرا برابر بھی شعور نہیں ہوتا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہوتا ایسے مولویوں کو قتل کرتا، وہ ایسے فسادی، دنگائی اور شرری اور مذہبی دہشت گرد مولویوں کو وہ قتل کر دیتا ہے، مگر حجاج بن یوسف تو ہے نہیں۔ تو یہ اس طرح سے گر چکے ہیں اور اپنا معیار گرا چکے ہیں۔ مجھے سقوط بغداد کا واقعہ یاد آتا ہے۔ تاتاری اپنی پوری توانائی اکٹھی کر کے اور مکمل آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ لشکر جرار لے کر، لشکر خونخوار لے کر بغداد پر چڑھائی کرنے کو آ رہے تھے، اور بغداد میں بھی اس وقت بھی ایسے شرری فسادی مولوی تھے کہ وہ بغداد میں اندرون بغداد مناظرے کا اسٹیج لگا رہے تھے۔ اب مناظرے کا اسٹیج کیسے عناوین پر تو مسواک کی سائز ایک بالش سے زیادہ ہو یا کم ہو یا برابر ہو، کون سے کلر کا کوا کھانا جائز ہے، کون سے کلر کا کوا کھانا ناجائز ہے،
इस तरह की बातों को लेकर के ये स्टेज सजा रहे थे मुनाजरे का। नतीजा ये हुआ कि लश्कर तातार ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया। नहीं मिसबाक की साइज़ एक बालिश वालों को छोड़ा, न एक बालिश से कम वालों को छोड़ा, और न ही स्याह कौवा वालों को छोड़ा, न सफ़ेद कौवा वालों को छोड़ा। उन्होंने इन तमाम का फ़र्क किए बग़ैर सबको तहोबाला किया, सरों का मीनार बनाया। दरियाए दजला खून के पानी से रंगीन हो गया। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े दर्दनाक अंदाज में उसकी अक्कासी फरमाई। आसमारा हक बवत गर खूँ बबारत बर ज़मी बरज़वाले मुल्क मुस्तासिम अमीरुल मोमिनी नाज़नीना ने हरमरा खून अश्के नाज़नी ज़ांसता बगुज़श्त तुम्हारा खून दिल अज़ास्ती। यानी उसमें महल के नाज परवरदों का भी ख्याल नहीं किया गया और पर्दा नशीनों का भी ख्याल नहीं किया गया। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या औरत, क्या मर्द, सबको उन्होंने तहक़ीक़ किया। तो यह सिलसिला इन नाअहल मौलवियों का शुरू से आ रहा है कि आपस में इख्तलाफ ज़्यादा करेंगे, अपने मुखालिफिन को ज़्यादा मौरद तान बनाएंगे, मसलक का काम कौन कर रहा है उसकी तमीज़ भी नहीं करेंगे। बस ये वाह वाह में लगे रहते हैं, नारों के झंकार में इनके जलसे होते हैं। जलसा से पूरी रात के जलसा से कोई पैगाम कौम के नाम नहीं दिया जाता। कौम वहाँ से उठती है तो अफसोस करती हुई उठती है कि आए थे सरकार की ज़िंदगी बयान की जाए, सरकार की सीरत बयान की जाएगी, औलिया कराम की ज़िंदगियाँ बयान की जाएंगी। मगर यहाँ आने के बाद तो पता चला कि ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपने ज़ाती मकसद के हुसूल के लिए जलसा किया था। चंदा कौम के नाम से लिया कि सरकार की बातें की जाएंगी, कौम के नाम से चंदा इकट्ठा किया कि औलिया कराम की बातें की जाएंगी, कौम के नाम से चंदा लिया कि सरकार की ज़िंदगी बयान की जाएगी, उसमें रसूल बयान किया जाएगा। और ये कौम के साथ धोखा देते हैं कि यहाँ अपने जो ज़ाती इनके मुखालिफिन होते हैं, जिनसे नज़रियाती इख्तलाफ होता है, वो भी अक़ीदे का इख्तलाफ भी नहीं होता, मजहबी इख्तलाफ भी नहीं होता, नज़रियाती और फ़िक्री इख्तलाफ होता है, ऐसे मुखालिफिन को ये अपने आने वाले स्टेज पर जो वो ज़मीर फ़रोश मौलवी होते हैं उनसे तकरीरें करवाते हैं, उनसे बकवास करवाते हैं, उनको नजराना मुट्ठी भर कर देते हैं। अरे कौम ने तुमको इसलिए पैसा दिया था कि तुम अपना ज़ाती मकसद निकालो। अल्लाहना में जो शाहजी आए थे उन शाहजी से हमारा क्या इख्तलाफ है ज़ाती, कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं है। मगर ये सोचते हैं कि इस तरह नहीं करूँगा तो प्रोग्राम का दायरा मेरा नहीं होगा, मेरे प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे, तो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम नहीं होगा। तो उन्होंने जलसा वालों को खुश करने के लिए, सिर्फ अल्लाह रसूल को खुश करने की तो फ़िक्र नहीं है इन नाअहलों को, जलसा वालों को खुश करने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है इन लोगों को। इसलिए उलमा का वक़ार चला गया, उलमा का वक़ार मजरू हो गया कि जब देखो ये इख्तलाफ की बातें करते हैं, एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, कौम इस्लाह क्या पाएगी। तो जिस तरह का खिताब इनके सामने पेश किया जाता, शर्री, दंगाई, फसादी तकरीरें और ख़िताब, तो उसी तरह का जहन लेके कौम उठती है और उलमा से बदजन होकर, मुतनफ़िर होकर यह कौम उठती है। तो ये अफसोस का मरहला है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि कौम के साथ ये गद्दारी न करें, कौम को धोखा न दें, बल्कि जिस मकसद के लिए कॉन्फ्रेंस सजाई जाती है और जो उन्वान जलसों का बनाया जाता है उस उन्वान के मुताबिक गुफ्तगू करें। अभी कौम में इख्तिलाफी गुफ्तगू करने का टाइम नहीं है, बल्कि कौम को पैगाम इत्तेहाद देने का वक्त है। ख़ुद भी अपने आप को बचाइए, कौम को बचाइए और ख़ुद भी तबाही से अपने आप को दूर कीजिए, कौम को भी तबाही से दूर कीजिए। ऐसा समय है, मगर इसको समझे कौन? ये नाअहल मौलवी तो समझने वाले हैं नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को अपने स्टेज पर बुलाना ही हिमाकत है, जो आकर के स्टेज की पाकीज़गी को, उसकी नज़ाफ़त को, स्टेज के तक़द्दुस को पामाल करते हैं और उस जगह ये बदबू फैलाते हैं। मेंबर रसूल से नफ़रतों का पैगाम ये देते हैं, मेंबर रसूल से बगावतों की बातें ये करते हैं, मेंबर रसूल से ज़ाती बदला निकालने की ये नापाक कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कौम भी सबक सिखाना चाहे तो सिखा सकती है। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसी तनाज़ुर में अवाम अहले सुन्नत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनका रवैया उलमा के साथ कैसा हो और वो कैसे समझेंगे कौन सही बोल रहे हैं और कौन गलत बोल रहे हैं? अवाम अहले सुन्नत को क्या पैगाम देंगे? अवाम अहले सुन्नत को यही पैगाम देंगे कि आप भी होश के नाखुन लें और आप भी सही और गलत उलमा को पहचानें, ज़ात बरादरी के झमेलों से उठकर
अपने और बेगानों के झमेलों से उठकर आपको भी हक और बातिल पहचानने का शऊर अल्लाह ने बख्शा है। आप भी पहचानें कि कहाँ से, किस स्टेज से इख्तिलाफ की बात की जाती है, कौन उलमा फसाद की बातें करते हैं, कौन उलमा आपस में नफ़रतें फैलाने की बातें करते हैं। ऐसे उलमा से आप दूर रहें, ऐसे उलमा को नज़रअंदाज करें, अपने गांव में बुलाना छोड़ दें, उनसे तकरीरें करवाना छोड़ दें। तो आवाम भी इसमें कसूरवार है, ऐसा नहीं कि आवाम का कसूर नहीं है। वो तो खूब जान रहे हैं लोग कि कौन मौलाना इख्तिलाफ की बातें करता है, कौन मौलाना इत्तेहाद की बातें करता है। इस जानने के बावजूद भी आप इख्तिलाफी मौलाना का सपोर्ट करते हो तो आप भी कसूरवार हैं। आवाम अगर एक फ़ैसला खाली ले ले तो देखिए जितने शर्री और फसादी और दंगाई मौलवी हैं उनका नाटका बंद हो जाए, उनकी दुकानें बंद हो जाएं। और वो फ़ैसला लेने की ज़रूरत क्या है, ये फ़ैसला ले ले कि जो मौलाना इख्तिलाफ की बात करे, आपस में नफ़रतें बांटने की बातें करे, ऐसे मौलाना लोगों को आप छोड़िए। और उसका अंदाज़ा करने के लिए एक बड़ा अच्छा पैमाना है, हर गांव वाले अपने अपने गांव में महफिल सजाइए, हर गांव वाले अपने अपने गांव में महफिल सजाइए। और आपकी नज़र में जितने उलमा ऐसे हैं कि जिनका आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ है, नज़रियाती इख्तिलाफ, फ़िक्री इख्तिलाफ, ऐसे सारे मौलाना को बुला लीजिए, आप दावत दीजिए। नजराना की बात नहीं करिए, अल्लाह तौफीक दो तो किराया दे दीजिए, वरना वो भी नहीं। नजराना की बात नहीं कीजिए, खाना खिला दीजिए और आप उसमें दावत दीजिए सबको। जो आलिम आपकी दावत पर पहुंच जाएं, नजराना की लालच किए बग़ैर अपने ख़र्चे से चले जाएं, समझ जाइए कि ये इत्तेहाद के दाई हैं, इत्तेहाद के ख़्वाह हैं, कौम में मेल मिलाप इत्तेहाद चाहते हैं। और जो न जाए समझ जाइए कि ये फसादी है, फिर उससे सब लोग अलग हो जाइए ना। फिर ऐसे फसादी मौलाना को छोड़ दीजिए ना, तब समझा जाएगा कि आपके अंदर भी हक़ानियत का जज्बा है, हक़ तलबी का जज्बा है। आप चाहते हैं कि उलमा को राह रास्त पर लाएं, तो यही करना होगा। हर गांव में महफिल सजाइए और ऐसे ऐसे तमाम 2, 4, 5 उलमा को बुलाइए जिनके आपस में नज़रियाती इख्तिलाफ हैं, जिन्होंने आपस में दूरियां बना रखी हैं, तो उन तमाम को बुलाइए आप। और जो उलमा आपके स्टेज पे चले जाएं, आपकी दावत पे चले जाएं, समझ जाइए कि ये इत्तेहाद के दाई हैं और चाहते हैं कि कौम लड़ने से बचे, इख्तिलाफ से बचे। और जो मौलाना ना पहुँचे, बग़ैर उज़्र शरई के जो मौलाना ना पहुँचे, तो आप समझ जाइए कि यही दंगाई है, यही फसादी है। पहचानने का बेहतरीन पैमाना है ये। ऐसे मौलानाओं को छोड़िए, फिर देख लीजिए इत्तेफाक व इत्तेहाद की कैसी खुशगवार फ़ज़ा कायम होती है। और जितने दंगाई हैं सब साइड हो जाएंगे। मगर ये दंगाई लोग आपको मसलक का वास्ता देते हैं, तो कोई अपने पीरों का वास्ता देंगे, कोई अपने मज़हब का मसलक का वास्ता देंगे। तो आपको समझना चाहिए ये लोग मसलक का नाम सिर्फ लेते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। मज़हब का नाम लेते हैं मगर काम नहीं कुछ करते हैं। पीरों का नाम लेते हैं मगर पीरों के पैगाम पे नहीं चलते हैं। तो ये सिर्फ अपनी पेट परवरी के लिए मसलक का इस्तेमाल करते हैं, मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने का बेहतरीन पैमाना है वही कि आवाम को चाहिए कि हर गांव में महफिल करें और ऐसे ऐसे मौलानाओं को बुलाएं, दावत दें, जो पहुंच जाएं, समझ जाएं कि यही वाकई में उम्मत के खैर ख़्वाह हैं, मिल्लत के खैर ख़्वाह हैं और इत्तेहाद के दाई हैं। जो न पहुंच सकें तो उनके बारे में आप समझ जाइए कि यही फसादी हैं। तो ऐसे लोगों को अगर अवाम अहले सुन्नत भी बाइकाट करना शुरू कर दे तो यकीनन इनके होश आ जाएंगे और ये ख्वाब गफलत से बेदार होंगे, शरारत छोड़ देंगे। लेकिन इन मौलवियों को शरारत पर उभारने में अवाम का भी दखल है कि सबको एक पैमाना से आप तौलते हैं, एक तराजू में आप तौलते हैं। जो इत्तेहाद के दाई हैं उन्हें भी, और जो इख्तिलाफ की बातें करते हैं, नफ़रत की बातें करते हैं, उन्हें भी। तो इस तरह से आप भी कसूरवार हैं, आवाम भी कसूरवार है कि वो क्यों नहीं सही गलत की तमीज़ कर पाती है, क्यों नहीं सही गलत में फ़र्क कर पाती है। अगर वो सही गलत में फ़र्क करना आज शुरू कर दे तो कल से इन मौलवियों की टेढ़ी चाल सीधापन में बदल जाए और ये ठीक हो जाए। अवाम अहले सुन्नत से मेरा यही पैगाम होगा कि आप उलमा के इन इख्तलाफात को पेट परवरी का इख्तलाफ समझिए। ये मजहबी इख्तलाफ नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना दायरा मजबूत करने के लिए, अपना अपना हल्का मजबूत करने के लिए
کہ ہمارے مریدین ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے معتقدین ہمارے ساتھ آئیں، کسی اور کے جھولی میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے وہ اس طرح سے مذہب کا نام لے کر کے، دین کا نام لے کر کے، سنیت کا نام لے کر کے آپ کو بانٹ رہے ہیں، لیکن ان کو سنیت سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، سنیت سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہوتی ہے ان کو۔ جو شر اور فساد پھیلاتے ہیں، مسائل میں اختلاف، مسائل میں نظریاتی فرق ہر زمانے سے ہوتا آیا ہے، آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، لیکن اس کو وہ رنگ نہیں دیا گیا نفرت کا جو آج کے مولوی رنگ دے رہے ہیں۔ اس لیے عوام اہل سنت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھیں، سیاہ و سفید کو سمجھیں، ظلمت اور نور کو سمجھیں، اتفاق اور اتحاد کے پیغام میں فرق محسوس کریں، اور جتنے اتحادی علماء ہیں ان کو وہ فالو کریں، ان کو وہ لائق کریں، ان کو اپنے یہاں بلاویں، اور جتنے اختلافی ہیں، شرری ہیں، فسادی ہیں، دنگائی ہیں، جن کا ہم نے نام مذہبی دہشت گرد دیا ہے، مذہبی آتنکواد جن کا نام میں نے دیا ہے، ایسے آتنکیوں کو آپ چھوڑ دیجئے، خود یہ سیدھے ہو جائیں گے۔